ایک اور ملاقات کی طرف لے کے بڑھ رہی ہوں. 14 اگست کو جتنے خوبصورت طریقے سے کیسر صغیر نے سیلیبریٹ کیا ہے, انبلیویبل. ناچنا, گانا, دھمال ڈالنا بہت آسان ہے, بٹ ٹو ورک فار اے کاز, کیپ آن واچنگ پلیز. You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto. بہت سے لوگ رول ماڈلز ہوا کرتے ہوتے ہیں. ٹیری فاکس, کینسر ہوتا ہے, اس کینسر کے نتیجے میں ٹانگ کٹ جاتی ہے, اور پھر یہ شخص کی ہوئی ٹانگ کے ساتھ, آرٹیفیشل ٹانگ کے ساتھ یہ ٹریول کرتا ہے, اور یہ دس ٹریول واز ناٹ ایزی, اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ٹریول. ان کے پیرنٹس آج تک اس کو کیری کیے ہوئے ہیں. کیسر صغیر میو, بے شمار لوگ ان کو جانتے ہیں. پاکستان میں ہمارے اخباروں کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, سپورٹس کو آپ نے کور کیا, اور ایک سپورٹس مین کی جو اسپرٹ ہوتی ہے اور ایک جو سپورٹس مین کی جو اپروچ ہوتی ہے وہ آج بھی کیسر صغیر میں ہے. 14 اگست کے حوالے سے لاسٹ ایئر انہوں نے کیا ایک ریزولوشن اپنے دماغ میں بنایا تھا اور کس طرح سے اس کو اچیو کیا ہے. آئی تھینک جناب کیسر صغیر میو صاحب اسٹوڈیو میں تشریف فرمائیں. کیسر السلام علیکم. وعلیکم السلام. مائک کے قریب آ جائیں تو بہت شکریہ ہوگا. بالکل, اور قریب آ جائیے گا. کیسر, سب سے پہلے تو ہمیں تھوڑا سا اپنے پاسٹ کے بارے میں بتائیں. پاکستان میں تمام پلیئرز کے ساتھ آپ کا بڑا قریبی تعلق رہا, تو تھوڑا سا بتائیں گے ہمیں اپنے بارے میں. جی ضرور. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ یہاں پر انوائٹ کرنے کے لیے. اور ایک چیز مجھ سے, میری شخصیت کا حصہ شروع سے ہے. شام کے وقت میں جب میں اپنے کالج سے واپس آتا تھا اور اکیڈمی میں پڑھاتا تھا, تو مجھے جو وہاں سے پیسے ملتے تھے اس سے پھر میں نے ایک چھوٹی سی جگہ کرائے پر لی جہاں پر کچھ ٹیبلز اور کرسیاں رکھیں, اور وہاں میں بچوں کو فری ٹیوشن وغیرہ پڑھاتا تھا. اس کے علاوہ اپنے علاقے میں 14 اگست یا کوئی بھی بڑا جو ایونٹ آتا تھا اس پر ہم لوگ پورا اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے, علاقے میں جھنڈیاں بھی لگاتے تھے, کوئی شو کرواتے تھے, اور بچوں کے لیے جو بھی فیس وغیرہ ان کی وہ ہم ادا کرتے تھے. تو یہ چیزیں کچھ شروع سے میری شخصیت کا حصہ تھی. پنجاب یونیورسٹی سے میں نے پڑھا ہے, جرنلزم میں ماسٹر کیا ہے, اور میں نے پنجاب یونیورسٹی کی کرکٹ ٹیم میں بھی کھیلا ہے, نوائے وقت کی کرکٹ ٹیم میں کھیلا ہوں, اپنے علاقے کے کلب سے کھیلتا تھا. اس کے بعد پھر سپورٹس میرا پیشن تھا, تو سپورٹس ہی میں نے کور کرنا شروع کیا. اور اس دوران بہت سے جو کرکٹر ہیں, شاہد افریدی ابھی کچھ دن پہلے یہاں ٹورنٹو آئے ہوئے تھے, ان پر جو پہلی کتاب لکھی تھی وہ میں نے ہی لکھی تھی, جس کا نام تھا شاہد افریدی کی آپ بیتی. وہ بھی گوگل کریں تو آپ کو مل سکتی ہے. آپ وہ آئے تو آپ سے ملے؟ نہیں, میری ملاقات نہیں ہوئی. اتفاق ایسا ہے کہ وہ اس سے پہلے بھی آئے تھے, اس وقت میری ملاقات ہوئی تھی, لیکن اس مرتبہ میری ملاقات ان سے نہیں ہوئی. میں کچھ اپنی مصروفیات میں تھا, لیکن ویسے بھی تھینک لیس قوم ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ مطلب یہ کہہ لیں کہ میں نے کبھی کسی سے ایکسپیکٹ نہیں کیا. میرا ایک اپنا سٹائل ہے. مجھے یاد ہے, اور میں بالکل یہ آن ایئر کہہ رہا ہوں, شاہد افریدی اس چیز کو کنفرم بھی کر سکتے ہیں. میں نے جب ان کو بہت سے انٹرویوز کیے اپنے نوائے وقت کے لیے, کیونکہ شاہد کا ایک گلیمر تھا, لوگ پڑھنا چاہتے تھے, شعیب اختر کا. تو اس وقت شاہد نے مجھ سے کہا تھا کہ جتنے بھی مطلب موسٹلی صحافی ہیں وہ میرے پاس آتے ہیں ہمیشہ. کوئی کہتا ہے مجھے بیٹ دے دو, کوئی کہتا ہے مجھے اپنی ٹی شرٹ دے دو. تم نے کبھی کچھ نہیں مانگا؟ کہتے آپ نے کبھی مجھ سے نہیں کچھ مانگا. تو میں نے کہا میں آپ سے محبت اور احترام کا رشتہ ہمیشہ رکھنا چاہتا ہوں, اس لیے کبھی آپ میری زبان سے کوئی فرمائش نہیں سنیں گے. اس وقت انہوں نے مجھے اشاروں میں بتایا بھی کہ ان کے بھائی طارق آفریدی ہیں, ان کے پاس جو پیپسی ہے اس کی ڈیلرشپ ہے. لیکن میرا ایک اپنا تھا کہ میں اپنے پیشن کے طور پہ سپورٹس کو کور کرتا تھا. میرا کوئی مقصد نہیں تھا کسی کے ساتھ. عبدالرزاق سے ابھی تک میرا تعلق ہے, میں نے ان کو اپنے چینل کے لیے, یوٹیوب چینل کے لیے انٹرویو بھی کیا. عاقب جاوید کو انٹرویو کیا. شعیب کے ساتھ کیسا تعلق؟ شعیب سے تعلق شروع میں بہت اچھا تھا, بڑا زبردست تعلق تھا, اور میرا خیال ہے کہ آئی واز دا اونلی ون کہ جو شاید شعیب کے ساتھ یعنی آفٹر دا پریکٹس مطلب ہم لوگ کمرے میں آتے تھے اس کے ہوٹل کے روم میں. موسٹلی ٹیم پل کانٹیننٹل پی سی میں ٹھہرتی تھی, اور وہاں میں ہی تھا جس کے ساتھ اس کا بہت اچھا تعلق تھا. بڑی پرسنل باتیں جو شعیب کے اس وقت جو بھی معاملہ چل رہے تھے سب مجھے پتہ ہوتے تھے. لیکن ایک ایسا موقع آیا کہ جب ہمارے تعلقات میں دراڑ آئی, کیونکہ شعیب تھوڑا نا پوزیسو ہے. وہ یہ کہ اول وہ کسی سے دوستی کرتا نہیں, اور جب دوستی ہو تو اس کا ہوتا ہے کہ بس یہ بندہ کسی کی طرف اب نہ دیکھے. یہ ایک عجیب سی مطلب ہے شاید, لیکن اس کی شخصیت کا حصہ ہے. اور بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ شعیب بہت تنہائی پسند ہے. وہ ویسے جتنا جالی اور جتنا وہ باتیں کرتا ہے وہ عام زندگی میں اتنا ہی پرائیویٹ ہے,
ایک چیज़ جو بڑی باقاعدگی سے وہ کرتا ہے وہ जिम, وہ क्रेज़ है उसको जिम का. अदरवाइज़ वो कमरे में होता है और तन्हाइयाँ होती हैं. अब हो सकता है शादी के बाद कुछ चेंजेस आ गए हों, लेकिन मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब मैं स्पोर्ट्स कवर करता था. और एक दिन एक छोटी सी बात पे हमारा ताल्लुक़ ख़राब हुआ और उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी हम उसे दोबारा से पैच हो सके, बेहतर कर सकें. हाँ, एक दिन हम लोग पीसी होटल जा रहे थे, शुएब मुझे लेकर आया था साथ अपने कज़ावी स्टेडियम से, और हम लोग पीसी ये जो लाहौर है वहाँ लिफ्ट से निकले हैं तो आगे से वो हॉल से अज़हर महमूद आ रहे थे. अज़हर महमूद वो भी उनसे मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक़ था क्योंकि मैं स्पोर्ट्स कवर करता था तो तमाम प्लेयर्स के इंटरव्यूज़ करना सब कुछ. और हमारा एक नवाए वक्त का एक फैमिली मैगज़ीन है, उसमें एक सिलसिला होता था फैमिली फीचर, जिसमें हम 2 पेजेस डिटेल इंटरव्यू करते थे और बाज़ का हम उसका टाइटल भी लगाते थे. तो अब्दुल रज़ाक तो टाइटल पर छप चुके हैं उसके. तो उसमें अज़हर ने मुझे देखा तो अपने वो स्टाइल में ना, अज़हर से मेरा एक और थोड़ा सा ताल्लुक़ यूँ भी बनता था कि मेरी वालदा इस्लामाबाद से हैं तो मैं वो पोटवारी ज़बान बोल लेता हूँ, तो अज़हर भी पिंडी से हैं, तो बड़ा एक हमारा एक वो अच्छा ताल्लुक़ था. और शुएब भी पिंडी से हैं, तो शायद एक ये वजह भी थी कि थोड़ा सा उनके मैं करीब हुआ. तो अज़हर ने मेरा बाजू मेरा हाथ पकड़ा और वो मुझे खींचता हुआ ले गया. इससे पहले कि शुएब कोई भी बात करता ना मुझे समझ आती कि ये हुआ क्या है, वो मुझे खींचता हुआ अपने कमरे में ले गया. वो दिन और आज का दिन के शुएब से मेरे ताल्लुकात कभी बहाल नहीं हुए. मुझे नहीं पता कि उसके बाद उसने मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया. उसने कभी मुझे कहा कुछ नहीं, लेकिन मुझे चूँकि उसकी तबीयत का अंदाज़ा था, मैं तो ये कहूँगा कि मैं उस सिचुएशन को नहीं संभाल सका. मुझे तो अंदाज़ा नहीं था कि अज़हर इस तरह करेंगे और मैं क्या करूँ उसके रिस्पॉन्स में. लेकिन शाहिद से ताल्लुक़ है अभी मैं यानी कि ताल्लुक़ से मुराद ये है कि मैंने कभी फ़ोन पे या इस तरह रब्ता नहीं रखा क्योंकि मुझे उनसे कोई ऐसा मवाद नहीं है. यहाँ जब वो आए थे तो उस वक्त मेरी उनसे मुलाकात हुई थी 2000 मेरा ख्याल 7 या 8 में, जब 4 नेशन टूर्नामेंट हुआ था यहाँ पर किंग सिटी में. तो उस वक्त शाहिद आफरीदी से मेरी मुलाकात हुई थी, शोएब मलिक पे थे, शोएब अख्तर भी उस वक्त आए थे. लेकिन अभी रिसेंटली मेरी मुलाकात उनसे नहीं हुई. अलबत्ता इतना तो ज़रूर है कि मुझे फेस से देखेंगे या वो नाम बताएं कैसर सगीर तो मुझे उम्मीद है कि वो इतना तो पहचान जाएंगे. मुझे ये बताइएगा कि आपने यहाँ भी अपना पॉडकास्ट शुरू किया ना गेम्स के बारे में? मैंने अपना स्पोर्ट्स रिपोर्टर कैसर के नाम से मेरा यूट्यूब पर चैनल है जी, और बहुत पहले वो चैनल शुरू किया था, लेकिन बस वही है कि ऑफ एंड ऑन वाला मामला रहा. एक स्पोर्ट्समैन की तरह से आपने 14 अगस्त को जो सेलिब्रेट किया है एक कॉज के लिए, यानी एक शख्स ने मेंटल हेल्थ उसकी कितनी ज़बरदस्त होगी कि उसने वो 1 साल मेहनत की, उसने उस वॉक के लिए प्रैक्टिस किया, उस टाइम के लिए प्रैक्टिस किया, और 14 अगस्त को जो आपने एक्चुअल इम्पोर्टेंस दी इन द मेन स्ट्रीम मीडिया, वुड यू माइंड टू शेयर? जी, उसमें ये था कि वॉक तो हमेशा से मेरा एक रहा है, हॉबी रही है. मैं बल्कि आप हैरत होगी कि मैं अभी ऑफिस मैंने यहाँ मेरा मई 1 को ट्रांसफ़र हुआ है हेड ऑफिस मेरा यहाँ मिसागा में. हेड ऑफिस तो पहले से था लेकिन मैं यहाँ पर आया हूँ यहीं मैथिसन पर. तो सब मुझे कहते थे कैसे आप कार इतनी दूर क्यों पार करते हो, गाड़ी आप बिल्कुल लोग दरवाजे के सामने पार करते हैं, आप इतना दूर क्यों पार करते हो. तो मैं उनसे हमेशा एक ही बात कहता था किस तरह मुझे कुछ वॉक करने का मौका मिलता है कि मेरे लिए बहुत ईजी है कि बिल्कुल ऑफिस के सामने खड़ा करूं. लेकिन मैंने हमेशा से ना अपॉर्चुनिटीज़ देखी हैं वॉक करने की. शायद वो स्पोर्ट्स का मुझ में था, और यानी बाज़ का अभी पहले मैं डाउनटाउन में काम करता था तो टीटीसी लेके मैं जाता था. अब वाइफ कहती घर पे गाड़ी खड़ी आप टीटीसी क्यों ले रहे हैं, तो मैंने कहा सिर्फ इसलिए कि उसमें बहुत स्टेप्स इन्वॉल्व हैं. जब मैं जाता हूँ कोई ट्रेन ऊपर जाना पड़ता है, किसी के लिए नीचे जाना पड़ता है, वो नॉर्थ और साउथ बोर्ड इस तरह के ईस्ट और वेस्ट चलती हैं, और ट्रेन तक जाने के लिए बस तक जाने के लिए मुझे वॉक करनी पड़ती. तो मुझे वो हमेशा से एक तलाश रहती थी कि मैं कैसे मतलब वॉक कर सकूं. और अब मैं ऑफिस आता हूं तो लाजमत है वो शाम में घर जाता हूं तब भी मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपना वॉक का टारगेट पूरा कर सकूं. तो उसमें लास्ट ईयर मैंने सोचा कि एक यानी वैसे तो वॉक करते हैं लेकिन इसको को थोड़ा सा सेट किया जाए जिसे हम यहाँ रेजोल्यूशन कहते हैं. तो मैंने कहा कि इस दफ़ा मैं 10,000 स्टेप्स हर रोज़ करूँगा. हर रोज़ से मुराद ये कि एवरेज मेरी 10,000 होगी. बाज़ का ये हो सकता है कि मैं बहुत बिजी रहा हूँ तो उसमें 2-3,000 स्टेप्स मैंने किए हैं और अगले दिन मैं उसको कवर करूँगा. और वो मैंने उसके लिए फ़ोन यूज़ करना शुरू किया अपना. अगर मैं वॉच यूज़ करूँ तो मेरा ख्याल वो स्टेप्स और भी ज़्यादा होंगे क्योंकि वॉच हर वक्त आप पहने होते हैं तो वो काउंटिंग हो रही होती है. फ़ोन का ये होता है अगर आपके हाथ में है पॉकेट में है तो फिर काउंटिंग हो रही होती है. तो मैंने जब साल के एंड पे था वो
11,500 स्टेप्स एवरी डे. 10,000 मेरा टारगेट था, मैंने 11,500 किए. तो मुझे उससे लगा कि ये तो मैं और ज़्यादा कर सकता हूँ. तो इस साल मेरा स्टार्ट बड़ा स्लो था, कुछ जॉब में बहुत बिजी रहा. तो 3 माह के बाद, यानी जब मौसम थोड़ा ये कह लें कि मई का आया, तो मैंने फिर वॉक उसमें ऐड करना शुरू किया. करते करते मतलब 15,000, 20,000 स्टेप, 25,000. मेरे करीब ही घर से करीब है सनीब्रुक पार्क, वो बहुत अच्छा पार्क है, अप हिल डाउन हिल. तो एक दिन मैंने 30,000 स्टेप किए. मैं तकरीबन मुसलसल 4 आवर्स चलता रहा, 4 आवर्स एंड हाफ. तो मुझे बड़ा मज़ा आया, मौसम बड़ा प्यारा था. तो फिर मुझे था कि भी ये सब कुछ तो मुमकिन है. तो उसमें ये हुआ कि किसी ने कहा कैसर आप ये मतलब वॉक जो करते हो तो इसको कहाँ तक आप मैक्सिमम जा सकते हो. मैंने कहा यार, मेरे मुंह से ऐसे निकला मिसिसागा तक. और अभी हमारे एक जर्नलिस्ट दोस्त हैं पाकिस्तान से, नदीम चौधरी उनका नाम है. तो उनकी वाइफ जो हमारे घर आई हुई थी, तो मैं उनसे भाभी से कहता भाभी आपके घर आऊँगा मिसिसागा में किसी दिन ना वॉक करके. तो वो हंसने लगे कि आप मजाक कर रहे हो कि इतना, मैं टोरंटो में रहता हूँ, ये मिसिसागा तक. तो वो फिर बात हुई से, तो मैंने सोचा कि भी अगर मैंने वॉक करनी है तो क्यों ना मैं 14 अगस्त का इंतखाब करूं, क्योंकि पाकिस्तान डे है, हम सेलिब्रेट करते हैं. लेकिन मेरा ख्याल इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता. जैसे अभी आप बात कर रही थी कि अक्सर प्रोग्राम में म्यूज़िक, हल्ला गुल्ला, डांस. मेरा नहीं ख्याल कि 14 अगस्त का ये मकसद है, बल्कि मकसद ये है. दिस इज़ हाउ यू स्टार्टेड. आपने जो कल हुआ ये आप पहुँच गए. So this is when you arrived in Mississauga, is that right? जी बिल्कुल. You started from Toronto. जी बिल्कुल, ये टोरंटो के. अच्छा, आपके साथ कौन है? Walking for the great cause. So what was the cause? We should share that cause first. जी, आपने पूछा मेरे साथ कौन है. ये सिटी काउंसलर है जॉन बर्नसाइड. जॉन बर्नसाइड. जी, ये साबिक पुलिस ऑफिसर भी हैं. अब ये है, इनसे मैंने आइस स्केटिंग सीखा था और पहले वॉलंटियर करते थे. अब ये 2 मरतबा इलेक्ट हो चुके हैं. सिटी के लिए बहुत ही मतलब अच्छे हैं. इनके अलावा एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे वहाँ पर. तो उसमें जो कॉज की आप बात कह रही हैं, मैंने कोशिश की पहले कि मैं किसी हॉस्पिटल के लिए, सिक किड्स के लिए करूं. तो मुझे बताया गया कि नहीं कैसे, इट्स टू शॉर्ट, टाइम इज़ टू शॉर्ट. But autism is very good cause. जी. One तो of फिर the best cause. उसमें मेरे एक दोस्त के दोस्त हैं जो जिनके बच्चे इस का शिकार हैं. तो जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कैसर मैं आपको ऑटिज़म ओंटारियो के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ. मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि सिक किड्स के लिए करूँ, या अगर ये ऑटिज़म ओंटारियो तो ये तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा पेपर वर्क इन्वॉल्व होता है. आप मतलब इनकी रिस्ट्रिक्शंस बहुत होती हैं कि आप हमारा लोगो नहीं यूज़ कर सकते बगैर अप्रूवल के. इवन जो हमने पोस्टर बनवाया वो उनके पास भेजा पहले कि आप अप्रूव करें, उन्होंने एक रिजेक्ट कर दिया. फिर दूसरा उन्होंने अप्रूव किया, वो हमने फिर शेयर किया सबके साथ. एक आपने ऑटिज्म को साथ लिया, उसके लिए लोगों ने ये अगेन मैं बताना चाहती हूँ, जैसे नवंबर में जो लोग हैं मर्दों ने किया था कि प्रोस्टेट कैंसर के आदमी मूंछें नहीं, शेव नहीं करते, और वो जो फिर जब शेव करते हैं और जो फंड रेज होता है तो वो उस साइड पे जाता है. तो आपने जो किया था एक ऑटिज़म की तरफ पैसे की, दोस्त अहबाब ने $10, $5, $100, $25, $1000 जो भी आप दे सकते हैं, आप उसको दे, रसीद आपको दी जाएगी और वो डिपार्टमेंट देगा. और ट्रिलियम हेल्थ पार्टनर्स. जी, ट्रिलियम हेल्थ पार्टनर्स, जी बिल्कुल, उनके साथ भी है, उन्होंने भी एक पेज बनाया हुआ है. अच्छा, अब मुझे आपको कुछ नोटिस में आया कि आपने इस मैसेज को, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस बात पे कि मुझे तो खुद कैसर ने 3 दिन पहले बताया. आई विश कि हम इसको मोर प्लान्ड वे में करते, और अगर 1 महीना पहले आप मुझे बताते. वी स्टार्ट टेलिंग पीपल. अल्लाह का शुक्र है अगर हमारे बच्चे सेहतमंद हैं, और ये एक इम्तहान है, और अगर इस मुल्क में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पेंशन लेनी है, मेडिकल हमारा है, बाकी चीज़ें अगर हम इंजॉय करते हैं, तो अगर हम इन कॉज में डोनेशन दे देंगे तो दिस इज़ नॉट, देयर इज़ नो हार्म. तो येस, आई फील अशेम्ड कि आई वाज नॉट वेरी मच prepared for this कि मुझे 2 दिन पहले, और जब आपको भी पता था, आई थिंक दैट वाज द लास्ट मोमेंट. 3 दिन पहले मेरी, 4 दिन पहले मेरी आपसे बात होती है. तो बट पेपर वर्क साइन किए बगैर हम अनाउंस नहीं कर सकते थे ना, जब तक हमारा उनसे कांटेक्ट साइन नहीं होता. कुछ अंदाजा हुआ कि कोई फंड अगर रेज हुआ तो कितना हुआ? जी, ऑटिज्म में काफ़ी हुआ है फंड. इसमें थोड़ा ट्रिलियम में भी स्लो, क्योंकि मैंने भी जिस दिन परसों का कवर किया था ना, तो मेरा कमिटमेंट थी, मैंने खुद भी, तो हम एयर पे कह रहे थे कि आप ओपन द पेज, बिकॉज आई थिंक
परसों की बात है, 13, 12, 11, 10 या 10 तारीख फ्राइडे को हमने इसको कवर किया था कि ट्रिलियम की ये साइट है, आप इसमें आएँ, डोनेट करें. मैं भी डोनेट करूँगी. आई वॉज लेट, आई डोनेटेड इट टुडे, बट it is for the same cause. This is our recognition कि ये community जिंदा community है, और अगर autism के लिए करते हैं तो these departments need us. अल्हम्दुलिल्लाह we earn, और दे सकते हैं, आपको रसीद मिलती है, टैक्स डिडक्टेबल रसीद मिलती है. तो फ्राइडे को हमने ये शेयर किया था. तो ट्रिलियम हेल्थ पार्टनर का मैंने कहा था कि भाई ठीक है, पर ऑटिज्म की तरफ जितना भी आप डोनेट कर सकते हैं करें. कैसे सो गुड. आई विश के वी कुड बी मोर प्लान्ड. एक गाड़ी बाकायदा आपके साथ चलती जो कि मुकम्मल फुटेज करती, जो उस गाड़ी के ऊपर बाकायदा बैनर लगा होता. बेसिकली तो अवेयरनेस है ना कि व्हाई दिस मैन इज वॉकिंग इन ग्रीन एंड वाइट विच इज़ रिप्रेजेंटिंग द कलर्स ऑफ पाकिस्तान फ्लैग, एंड ये बंदा क्यों वॉक कर रहा है. तो वही ना, लोग आते गए, कारवां बनता गया. तो दैट्स व्हाट कल कलाम को इंशाल्लाह आप इस कॉज को लेके चलें. इट विल बी अनदर लाइक टेरी फॉक्स रन इंशाल्लाह. और इसमें बड़ी अच्छी बात है, हमने ये कोशिश नहीं की कि लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करें. उसकी वजह थी कि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट था. हमने सिटी को, आपके पास मेरे 2 दिन थे. जिस दिन मेरी आपसे बात हुई उस दिन तक अप्रूव नहीं हुआ. बिल्कुल, क्योंकि जब वो चीज़ें फाइनलाइज हुई ना तो टाइम बहुत हमारे पास कम था. तो सिटी को इजाज़त लेनी पड़ती. अगर आप बहुत से लोग सड़क पे चल रहे हों या साइड वॉक पे चल रहे हों, उसमें लाइबिलिटी भी इन्वॉल्व रहती है, कोई हर्ट हो जाता है, कुछ हो जाता है. तो हमने कोशिश की कि लोगों को वॉक में ज़्यादा ना मतलब किया जाए शामिल, क्योंकि बहुत लंबी वॉक है. इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इट विल बी मोर ऑर्गेनाइज्ड, वी विल रेज मोर फंड. लेकिन मुझे खुशी है कि इसमें थोड़ी सी वो ऐड करूं कि एक 17 साल का बच्चा है जिसका नाम फैजान है, उसने हमारा साथ दिया. जी बिल्कुल, माशाल्लाह. बच्चे की पिक्चर नहीं है आपके पास? मैं आपसे शेयर करूंगा ताकि आप आइंदा कम से कम ज़रूर कर सकें. कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो भी मेरे उसमें, मेरा ख्याल एक तस्वीर जिसमें ग्रुप आप देखेंगे, अगर वो ये वाला सेकंड नंबर के ऊपर ये फैजान बच्चा है जिसने वो मेरे साथ है, मेरे साथ जो खड़ा हुआ लेफ्ट पे, अगर आप जी सेकंड लेफ्ट नंबर 2 ना. जी नंबर 2 ब्लैक पैंट्स के साथ. तो इनके वालिद वो आईटेक्स कनाडा के नाम से उनका बिजनेस है, वाजिद इकबाल. उन्होंने स्पॉन्सर किया था हमारे इस वॉक को, कंट्रीब्यूट किया उन्होंने. तो उनका बेटा है, तो इसकी ख्वाहिश थी कि मैं पूरा साथ चलूँगा, लेकिन चूँकि प्रैक्टिस नहीं थी. लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ये खुशी हुई कि भी एक यंगस्टर मोटिवेट हुआ है. और इंशाल्लाह जी नेक्स्ट ईयर आपने प्रोसेस में चलना है. एंड दिस इज़ अ वेरी गुड कॉज, स्पेशली रिकग्नाइज अपने सिस्टम को. वी आर पीपल हु कैन गिव. देते हैं आप लोग सारे, बहुत अल्लाह के नाम पे करते हैं, बहुत करते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. जब अगर कोई बच्चे हैं ऐसे जो किसी एक डिसेबिलिटी के साथ हैं या किसी एक कमी के साथ हैं, तो ऑफ कोर्स वी आर ऑल देयर. ये डिपार्टमेंट्स बहुत कमाल के डिपार्टमेंट्स हैं. अब ऑटिज़म में भी और मुख्तलिफ हेल्थ सेक्टर्स के बीच में फंडिंग में कटिंग होने की वजह से उनकी इलाज की बाद सहूलतें नहीं रहीं. तो ये जो फंड रेज होता है, इट हेल्प्स दैट वे. और देखें ना आप कि उन पेरेंट्स के लिए मतलब होता है कि अगर किसी बच्चे को कोई बीमारी है, वो जाते हैं, ट्रीटमेंट होती है, चले हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद वो बच्चा ठीक होकर घर आता है. लेकिन ये एक ऐसा मसला ऑटिज्म कि जो फॉर एवर बहुत मुश्किल है, रोज आप बच्चे को बहुत मुश्किल है सर. और मतलब जो पेरेंट है, मतलब माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे, तीनों बहुत हेल्दी हैं. क्योंकि लोग सोच रहे कुछ ने क्वेश्चन किया कि शायद मैं खुद, इसलिए मैंने कहा नहीं, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे सेहतमंद हैं. लेकिन मुझे उन बच्चों का भी उतना ही एहसास है कि एज ए पेरेंट मैं समझता हूँ कि उन पेरेंट्स पे क्या गुजरती है, कैसे वो उन बच्चों की टेक केयर करते हैं. और ख़ास तौर पे अब जब गवर्नमेंट ने फंड भी उनकी कटौतियाँ बहुत होगी. तो और ऑटिज्म का ना मेरा ख्याल है कि ऑटिज्म हमने एक दफ़ा फंड रेज किया था, एक खातून आई थी, तो उसमें जो एडवांस ट्रीटमेंट में था, उस एडवांस ट्रीटमेंट में पर सिटिंग आई थिंक इट वाज 10,000. डू यू रिमेंबर? तो मैंने उन खातून से कहा था कि स्कारब्रो से वो खातून थी, बाद में भी उन्होंने मुझे कॉल करके बड़ा दफ़ा शुक्रिया किया. तो हमने इकना इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका को मैंने कहा आप इन्वॉल्व करें. वी रेज द फंड. इस्लामिक सर्कल नॉर्थ अमेरिका के बकाया जो फंड ज़्यादा जमा हुए थे उस पर अगले किसी और के इलाज पे इस्तेमाल किए थे. तो ऑटिज़म के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है. ऑर्गेनाइजेशंस को साथ में लाने के बाद अगर हमारे दिन है तो हम सारा का सारा चीज़ें मतलब प्रॉपर तरीके से अगर करें तो ज़्यादा बेहतर है. कैसर बहुत शुक्रिया. आई लुक फॉरवर्ड. और मेरी रिक्वेस्ट है नेक्स्ट टाइम पे वी विल मूव फॉरवर्ड टुगेदर. आई मीन कि हम पहले हर एक को इन्फॉर्म करेंगे. वो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, बेशुमार लोग बहुत जेनरस हैं.
people will donate generously, I guarantee. इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर कर सकता हूँ आपको, वैसे दो चीज़ें कह लें कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना अच्छा फीडबैक होगा. यकीन करें कि दो अच्छे कॉज के लिए मुझे ऑलरेडी मतलब कह दिया गया कि कैसर 1 अक्टूबर में वॉक है बहुत बड़े कॉज के लिए, और एक आपसे रिलेटेड है. अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, लेकिन मेरी नेक्स्ट वॉक आपसे रिलेटेड होगी. इतना मैं ज़रूर आपको बता सकता हूँ कि उस आपका लिंक बनता है उस अल्लाह खैर करे, जो मैं करूँगा अल्लाह करे कि हम अच्छे के लिए. और मैं अक्सर दिल में ये सोचती हूँ, बहुत से लोग अनफॉर्चुनेटली, हमारा ना बड़ा शॉर्ट साइटेडनेस है हमारी, हम ये समझते हैं कि जवानी है, हुस्न खूबसूरती है तो सब कुछ है. जब इंसान पैदा हुआ तो हर पैदा होने वाले के लिए मौत भी लाजमी आ गई, ओल्ड एज भी आ गई. और ओल्ड एज वो मौका है जिसका कुरान पाक में भी जिक्र है कि जब हम उम्र बढ़ा देते हैं तो हम लोगों की शक्लों को तब्दील कर देते हैं. मगर साहब, अल्लाह करे कि मैं आज अपनी ज़िंदगी के इस मौके पे देखती हूँ कि ज़िंदगी में बहुत मेहनत की, बहुत काम किया, बहुत मेहनत की, मगर मेरे काम सिर्फ वही आएगा जो मैंने अपने हाथ से दे दिया या जो मैंने ज़िंदगी में खा लिया, पहन लिया. बाकी ज़िंदगी में यहीं छोड़ के चले जाना है. अल्लाह ताला मुझे और आपको इस काबिल करे कि हम हकीकत में सदका जारिया बन सकें, अपने वालिदैन के लिए, अपने जाने वालों के लिए सदका जारिया बन सकें. आई लव यू ऑल. बहुत शुक्रिया कैसर सगीर की, बहुत प्यारी बात है. मैं आई विश कि मैं आप सब टुगेदर अगली बार हम ये वॉक करें. उसमें ये ना हो कि हम पाकिस्तान, Muslims, South Asians, people from the subcontinent, सिर्फ मेरी मस्जिद और मेरा मंदिर नहीं, बल्कि the cause is this system. Thank you very much. Any message? बहुत शुक्रिया जी. बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी ये पेज रहेगा कुछ दिनों के लिए, तो प्लीज़ सब लोग डोनेट करें. और इसमें आमिर ज़रा पेज दिखा दें तो बहुत अच्छा है. मैं अभी बल्कि गई हुई थी उस पेज पे. अगर आप देखें तो मैं अपने कंप्यूटर के ऊपर दिखा सकती हूँ आपको. ये साहब वॉक विद QSM, कैसर सगीर मियो इनका नाम है. कैसर सगीर मियो टू सेलिब्रेट पाकिस्तान डे. ये देखिए साहब, जो लोग हमारा टेलीविज़न देख रहे हैं, ऑटिज़म ओंटारियो ये वेबसाइट है. वॉक विद QSM, कैसर सगीर मियो टू सेलिब्रेट पाकिस्तान डे. अब इसमें डोनेशन में बड़ी डोनेशंस भी हैं, छोटी भी हैं, 25 है. अदर्स के बीच में आप $5 की डोनेशन भी कर सकते हैं. ठीक है. आई प्रेफर टू मेक दिस डोनेशन एनोनिमसली. ऑफ कोर्स आप एनोनिमसली कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं तो आपका नाम भी आ जाए. आपने अपने कार्ड से देनी है, वही कार्ड की आपको इन्फॉर्मेशन, फ़ोन नंबर, सिटी, वो सारा कुछ दे दीजिएगा. वीज़ा से दें, डेबिट कार्ड से दें, और दीजिएगा. ऑटिज़म के लिए और ट्रिलियम हेल्थ 2 कॉजेज़ हैं, दोनों पे है. आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस है. मुझे ऑटिज़म के लिए इसलिए कि एक औरत कंसीव करती है और बड़े ख्वाब होते हैं उसके कि मेरा बच्चा पैदा होगा. जो लोग 39 और 40 के बाद कंसीव करते हैं, उनमें या बाज़ औक़ात फैमिली में कैरिंग जीन की वजह से ऑटिज़म होता है. ये किसी को इसके बारे में पता नहीं. इंसान को अल्लाह का इम्तहान है. नथिंग. माँ बाप, मैं ये यकीन करती हूँ कि वो माँ बाप जो अपने ऑटिज़म वाले बच्चों की खिदमत करते हैं, यकीनन जन्नत है उसके लिए. बिल्कुल उन माँ बाप के लिए बहुत सवाब है. ये पूरी ज़िंदगी का उन माँ बाप का भी इम्तहान है. तो ऑटिज़म की इस वॉक में जाए. ऑटिज़म ओंटारियो वॉक विद QSM, कैसर सगीर मियो टू सेलिब्रेट पाकिस्तान डे. आई विश कि मेरी टीम के लोग इसको हमारी वेबसाइट पे डाल दें. आपको पता है ये फेसबुक का तो बेड़ा गर्क हो गया. अल्लाह करे कि हम पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स में से निकल आएँ, ताकि अगर आप डायरेक्टली क्लिक करें, कोई अमाउंट बड़ी छोटी नहीं होती. $5 एंड कतरा दरिया में शबत. वो अयूब खान के दौर में कहते थे ना कि अगर एक टेडी पैसा आप जमा करें तो पूरी कौम एक टेडी पैसा जमा करे तो एक टैंक खरीद सकते हैं. ठीक है, तो वी कैन मेक इट वर्क टुगेदर. बिल्कुल ऐसे देखें ना, इसमें हम लोग किसी जगह खाना खाने चले जाएं, 2 लोग चले जाएं तो $50 बड़े आराम से हमारा बिल बन जाता है. नहीं ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा मतलब बिल बनता है. हम कॉफ़ी पे के लिए जाते हैं, उसमें खर्च करते हैं. लेकिन
وہ چیज़ ایسی ہے کہ جو آپ کے ساتھ یعنی آپ نے ٹیسٹ لیا اور ख़त्م ہو گیا, لیکن یہ ایک ایسی چیज़ ہے کہ جو آپ کے لیے, آپ کے پیرنٹس کے لیے, جانے والوں کے لیے صدقہ جاریہ ہے. تو کم از کم یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں وہ فائنینشلی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پے کر سکتے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو فزیکل کہہ لیں کہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں, جیسے میں نے کی, اسے کہتے ہیں دامیں درمیں سخنیں. جی بالکل. تو بس میسیج سب کے لیے یہی ہے کہ اس کو سٹاپ نہیں لگنا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک واک تھی اور وہ کاز ختم ہو گیا, کاز ول کنٹینیو انشاءاللہ. اور یہ چیلنج ہمارا ہمیشہ کا ہوتا ہے. انشاءاللہ آئندہ بھی ہم لوگ اپنے کچھ کریں گے کسی کاز کے لیے, اس کاز کے لیے اور کاز کے لیے. تو پلیز کنٹریبیوٹ, یہی میرا میسیج ہے. تھینک یو ویری مچ. کیسے صغیر میو, آپ کا بہت شکریہ, اور انشاءاللہ آپ سے اسی طرح رابطہ جاری رہے گا.